Okay. Good evening, all of you. Hello. Good evening, all of you. Today, Shadma Shadik is share her knowledge on topics of objective refractive techniques. Shadma has pursued diploma from Aligarh Muslim University and bachelor's from Hajami Hamdal University. She has experience of various camps and workshops. She is a very responsible student as she is my classmate. She is a very nice student, a very good. Thank you, Shadma. Most welcome. Please, you can go ahead now. Please start. Thank you, Nigat, for introducing me. Let's start. Now, our refraction or clinical refraction. What is refraction? Refraction is defined as the act of determining the focal eye and its correction by optical devices. Refraction is a method or technique find out the refractive error and types of refraction. There are two types of refraction, objective refraction and subjective refraction. I will mainly discuss objective refraction. Now, objective refraction, it is that which is done without input by the patient. इसमें पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, प्रैक्टिशनर या फिर एग्जामिनर को करना होता है. The objective method of refraction include retinoscopy, refractometry, photorefraction, and keratometry. I will tell you about the basics of retinoscopy. Now, what is retinoscopy? Retinoscopy is a technique to find out the refractive error by the method of neutralization. It is also called sky scope. Then its principle, its principle, it is based on the fact that when the light from a mirror into the eye, the direction in which the light will travel across the pupil will depend upon the refractive state of the eye. So as you all can see, ये लाइट सोर्स है. यहाँ से लाइट जब पास होती है प्लेन मिरर से, वो रिफ्लेक्ट पेशेंट की आई पर, और इस प्लेन मिरर के बीच में एक छोटा सा होल होता है जिससे एग्जामिनर या फिर प्रैक्टिशनर पेशेंट्स की आई को एग्जामिन करता है. तो ये प्रिंसिपल था. देन prerequisites for रेटिनोस्कोपी. क्या क्या रेटिनोस्कोपी के लिए? डार्क रूम, ट्रायल बॉक्स, ट्रायल फ्रेम, फोरऑप्टर और रिफ्रैक्टर, विजन बॉक्स, रेटिनोस्कोप. Now, or a room, anything. The room should be 6 meters long or can be converted into 6 meter by use of plane mirror. रूम 6 मीटर्स लॉन्ग होना चाहिए जिससे कि पेशेंट एक एंड पे पेशेंट बैठेगा और एक एंड पे इतना डिस्टेंस 6 मीटर्स का होना चाहिए. या फिर हम प्लेन मिरर का यूज करके रूम के, अगर रूम 3 मीटर्स का है, प्लेन के हम उसको 6 मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ ट्रायल बॉक्स में स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल, प्लस माइनस लेंसेज एंड प्रिज्म होते हैं 2 to 8 डायप्टर तक, 2 to 8 प्रिज्म डायप्टर. occluder to occlude an eye, pinhole, red green filter for duochrome test, and Medox rod. Trial frame, it should be adjustable type which can be used for adult and as well as for children. तो ट्रायल फ्रेम हमारा कैसा, वो एडल्ट को भी हम यूज कर सके और चिल्ड्रन के लिए भी उसको एडजस्ट कर सके उसकी आईपीडी के अकॉर्डिंग. ट्रायल फ्रेम में 3 to 4 कॉलम्स होते हैं. ये फर्स्ट कॉलम एक्सिस का है, एक्सिस मार्किंग जहाँ है वो सिलेंड्रिकल लेंसेज के लिए है. बाकी फर्दर स्फेरिकल लेंसेज और बाकी जो ऑक्लूडर, पिन होल वगैरह उसके लिए यूज करते हैं. Then phoropter or refractor. So it sounds like it. A phoropter is not an ophthalmic testing device, also called refractor. So
फोरॉप्टर एक अपने आप में ही ट्रायल फ्रेम होता है और ट्रायल लेंसेज भी उसी में आते हैं. हमें ट्रायल फ्रेम और ट्रायल लेंस की जरूरत नहीं है व्हेन वी आर यूजिंग फोरॉप्टर और रिफ्रैक्टर. इसी में स्फेरिकल लेंसेज, सिलिंड्रिकल लेंसेज, ऑक्लूडर, इवन आईपीडी आप इससे मेजर कर सकते हो. तो ये यूज नहीं भी. Vision box commonly used is Snellen's self-illuminated chart or illuminated box. Now, retinoscope, there are two types of retinoscope: mirror retinoscope and self-illuminated retinoscope. Retinoscopy is done with scope. Then mirror retinoscope also divided into two: single plane mirror and सिंगल प्लेन मिरर है. प्रीस्ले स्मिथ मिरर, उसमें मिरर प्लेन मिरर के साथ साथ कॉनकेव मिरर भी होता है. ये है प्लेन मिरर एंड देन इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड कॉनकेव मिरर, प्रीस्ले स्मिथ मिरर. नेक्स्ट सेल्फ इल्यूमिनेटेड, इसमें ऑल्सो टू टाइप्स है: स्ट्रीक एंड स्पॉट. स्ट्रीक स्ट्रीक रेटिनोस्कोप है. इसमें लाइट सोर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ती अलग से, लेकिन मिरर रेटिनोस्कोप में आपको लाइट सोर्स की जरूरत पड़ती है अलग से. क्यों सेल्फ इल्यूमिनेटेड खुद की लाइट देता है, इससे रिफ्लेक्स हम पेशेंट का देख सकते हैं. और स्कोप में हमें अलग से लाइट सोर्स चाहिए. तो जब हम मिरर रेटिनोस्कोपी करते हैं तो पेशेंट के थोड़ा सा ऊपर हमें लाइट सोर्स रखना होता है. तो उससे लाइट सोर्स से जो लाइट पास होती है रेटिनोस्कोप से, देन हम उसको पेशेंट ऑब्जर्व करते हैं. एंड स्पॉट रेटिनोस्कोप, इसमें स्ट्रीक में स्ट्रीक टाइप रिफ्लेक्स होता है और स्पॉट में स्पॉट टाइप, लेकिन मेनली स्ट्रीक रेटिनोस्कोप यूज किया जाता है. एक्यूरेट मिरर रेटिनोस्कोप होता है. देन प्रोसीजर ऑफ रेटिनोस्कोपी. रेटिनोस्कोपी हम कैसे करते हैं? मीटर डिस्टेंस पे बिठाते हैं. एग्जामिनर रेटिनोस्कोप से आई को ऑब्जर्व करता है 1 मीटर के डिस्टेंस पे. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेड रिफ्लेक्स. जब हम रेटिनोस्कोपी से ऑब्जर्व करते हैं रिफ्लेक्स को, तो हमें मेनली 3 टाइप्स देखने को मिलता है कैरेक्टरिस्टिक: स्पीड एंड ब्रिलियंस, विड्थ एंड द स्वेलिंग. स्पीड एंड ब्रिलियंस से हम कैसे पता कर सकते हैं कि रेटिनोस्कोपी किस टाइप का है और कितना है एरर? सो रिफ्लेक्स अगर फेंट है और रैपिडली मूव कर रहा है तो ये हमारा लो डिग्री टाइप ऑफ. अगर रिफ्लेक्स डार्क है और मूव कर रहा है स्लोली तो ये हाई डिग्री होगा. विड्थ से हम कैसे पता कर सकते हैं? नैरो विड्थ है then it will be high in high degree. अगर wide width है तो ये low degree में इंक्लूड होगा. स्वेलिंग क्या होता है? एस्टिग्मेटिक कंडीशन में जब हम रेटिनोस्कोपी करते हैं तो एक एक्सिस में हमें मूवमेंट दिखने की एक्सिस में मूव से स्वेलिंग क्रिएट हो जाता है. इट इज कॉल्ड स्वेलिंग. नाउ वेट रेटिनोस्कोपी. So wet retinoscopy is called when we use cycloplegic drugs. It is done with the use of cycloplegic drug cause paralysis of accommodation. Accommodation को रेस्ट में लाने के लिए या फिर पैरालाइज करने के लिए हम वेट रेटिनोस्कोपी को यूज करते हैं. हमारी रेटिनोस्कोपी एग्जैक्ट पता कर सकते हैं. सो स्पेशली यंग चिल्ड्रन और हाइपरमेट्रोप्स में जो एकोमोडेशन वर्क करता है तो उसको हम पैरालाइज करने के लिए ड्रग्स का यूज करते हैं. Here are some drugs: homatropine, cyclopentolate, tropicamide and phenylephrine. तो टोन अलाउंस
अब ये कि जब हम रेटिनोस्कोपी हिंडर कर लेते हैं, फाइनली जो रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग है हम उसमें डिडक्ट करते हैं सम अमाउंट ने उस जो हमने ड्रग डाला है उसकी वैल्यू हमें डिडक्ट करनी होती है। तो एट्रोपिन के लिए हम -1 करेंगे, मीन्स 1 डायप्टर देंगे। होमाइट्रोपिन के लिए 0.5 डायप्टर डिडक्ट करेंगे और साइक्लोपेंटोलेट के लिए 0.75 डायप्टर। Then what is different dynamic retinoscopy? Static retinoscopy performed without active use of accommodation, and dynamic retinoscope accommodation for near vision. So static retinoscopy is for far and dynamic is for near. So जब हम आगे पेशेंट की आई में रिफ्लेक्स, तो हमें काफी चीजें दिख सकती हैं, जैसे कि हमें कोई मूवमेंट नहीं दिखेगा पेशेंट की आई में। क्या इंटर कर सकते हैं कि उसे 1 डायप्टर का मायोपिया है। वो कैसे? जब हम देखेंगे पेशेंट की आई में रिफ्लेक्स होगा, वो या तो ब्राइटन होगा होल या फिर होली शेडो दिखेगा हमें। तो ये 1 डायप्टर मायोपिया कैसे? क्योंकि जितना हम वर्किंग डिस्टेंस से रेटिनोस्कोपी करते हैं उसको हम डिडक्ट करेंगे, जो भी उसने पावर या फिर नहीं है, कोई लेंस नहीं लगाया हमने पेशेंट को, तो वो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज दिख रहा है आपको। तो जो वह पेशेंट की पावर से उसे माइनस कर देंगे। पेशेंट हैविंग एनी पावर, then it called as 0, then 0 - 1 will be -1, तो मायोपिया हो जाएगा, डायप्टर मायोपिया। विद मूवमेंट हम देखते हैं कि रेटिनोस्कोपी करते वक्त जब रेटिनोस्कोपी का जब मूवमेंट हमारे रिफ्लेक्स की मूवमेंट के साथ जा रहा है, तो we will find that the patient could be emetropic, or metropic or myopic of 1 diopter. वो कैसे? जब पेशेंट का मूवमेंट विद द मूवमेंट है रेटिनोस्कोप के, ये द सेकेंड वन, रेटिनोस्कोप के साथ इसका मूवमेंट है, तो विद द मूवमेंट के साथ हम पेरिकल लेंस को इंसर्ट करेंगे ट्रायल फ्रेम में। कॉन्वेक्स लेंस हम इंसर्ट करने के बाद हम मूवमेंट देखेंगे पेशेंट का, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाए। फॉर एग्जांपल मैंने +1 इंसर्ट किया पेशेंट को, देन मूवमेंट हैज गॉन, कोई मूवमेंट नहीं है पेशेंट की प्यूपिल में या फिर शेडो, ब्लैक शेडो। देन वर्किंग डिस्टेंस हमारा था 1 मीटर, हमने 1 मीटर के डिस्टेंस पे रेटिनोस्कोपी हम 1 मीटर को डिडक्ट करेंगे। +1 मैंने लेंस लगाया पेशेंट को, +1 में -1 करेंगे, तो पेशेंट will have no power, means he or she haven't any power, any refractive error पेशेंट। क्योंकि मैंने +1 लगाया, देन डिडक्ट करेंगे -1, तो +1 - 1 इज equals to hypermetropic और myopic of 1 diopter। मान लीजिए मैंने +2 लगाया पेशेंट को, कौन +2 का, then I will deduct -1 for working distance, so +2 is equal to +1, hypermetropic हो गया पेशेंट। then against the movement रेटिनोस्कोपी करेंगे, हमारा रिफ्लेक्स रेटिनोस्कोपी के मूवमेंट के अगेंस्ट होगा। पुट करते हैं, तो अगेंस्ट द मूवमेंट में क्या क्या हो सकता है? मायोपिया ऑफ मोर देन 1 डायोप्टर। अगेंस्ट पेशेंट को लगाया -1, देन मैं वर्किंग डिस्टेंस के लिए डिडक्ट करूंगी -1, तो -1 -2, then patient have -2 diopter myopia. Next is
सिस्टेमेटिक एरर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? If the reflex seen different meridian, neutralize one axis first by a spherical lens, then the other with the रेटिनोस्कोपी करने के दौरान ड्यूरिंग हमें अगर पता चलता है कि एक एक्सिस में हम रेटिनोस्कोपी की मूवमेंट हमारा दूसरी एक्सिस में शो हो रहा है, तो इट विल बी एस्टिग्मेटिक एरर। तो हमें इससे पता चल जाएगा कि पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है, दोनों मेरिडियन में मूवमेंट अलग हो रहा है। लेकिन स्फेरिक कंडीशन में क्या होता है, दोनों मेरिडियन में मूवमेंट सेम होता है, या तो विद होता है या अगेंस्ट होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, एक एक्सिस में या तो विद जाएगा या फिर दूसरी एक्सिस में अगेंस्ट जाएगा। तो हमें पहले एक एक्सिस है, या तो आप स्फेरिकल से कर ले, फिर हमें सिलिंड्रिकल लेंस से न्यूट्रलाइज करना है, या आप सिलिंड्रिकल से कर ले। सिलिंड्रिकल लेंस added with right angle to the meridian is neutralized. सिलिंड्रिकल लेंस हम पुट करते हैं मेरिडियन, जिस मेरिडियन पे इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे पुट करते हैं, यानी न्यूट्रलाइज करना है हमें 90 पे, तो हम सिलिंड्रिकल एक्सिस की सिलिंड्रिकल रखेंगे 180 पे, तब जाके वो एक्सिस न्यूट्रलाइज होगी। नेक्स्ट, एस्टिमेशन ऑफ रेटिनोस्कोपी। रेटिनोस्कोप में मिल गई, देन हम उसमें डिडक्ट करेंगे डिस्टेंस के लिए, और डिडक्शन करेंगे टोनस अलाउंस के लिए जो हमने ड्रग्स इंस्टॉलेशन को। डिडक्शन फॉर डिस्टेंस के लिए 1 मीटर पे हम 1 डायप्टर करेंगे, हाफ मीटर पे 2 डायप्टर, 2/3 मीटर पे 1 डायप्टर डिडक्ट करेंगे। क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है, सभी जानते होंगे, फोकल लेंथ। तो 1/1 will be 1, 1/half will be 2, and 1/2/3 will be 1.5 diopter. Have example here. ये स्फेरिकल कंडीशन है, स्फेरिकल एरर कंडीशन। यहाँ मैंने रेटिनोस्कोपी फाइंड क्रॉस मेरिडियन मैंने बनाया, +2 वर्टिकल एंड +2 हॉरिजॉन्टल, बोथ सेम है क्योंकि स्फेरिकल है। यहाँ पे मैं -1 फॉर डिस्टेंस एंड -1 फॉर टोन अलाउंस, तो सो इट विल बी 0 0। द पेशेंट हैविंग एनी पावर, इट विल बी प्लेन और प्लेनो। नेक्स्ट, जब हम रेटिनोस्कोपी करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, जैसे पुअर रेड रिफ्लेक्स है, तो ये हमें कहाँ देखने को मिल, स्मॉल साइज प्यूपिल है, हेजी मीडिया है, हाई डिग्री रिफ्रैक्टिव एरर है, तो हमें पुअर रेड रिफ्लेक्स मिल सकता है। हम इसको ओवरकम कैसे कर, या फिर कॉनकेव मिरर रेटिनोस्कोप की मदद से या यूज करके हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। कॉनकेव स्कोप जो प्रीस्ले स्मिथ मिरर में था, और वो जस्ट रिवर्सल होता है प्लेन मिरर के। नाउ सेकंड, चेंजिंग रेटिनोस्कोपी फाइंडिंग। अब हम रेटी किया, हमने पहले उसको फाइंड करा, हमने लेंस लगाया, फिर हमने दोबारा करा, और चेंजिंग्स आती जा रही है हमारी रेटिनोस्कोप। तो क्या हो सकता है कि पेशेंट का जो एकोमोडेशन है वो एक्टिव है नॉर्मली, तो हम उसको रिलैक्स कर सकते हैं साइक्लोप्लेजिक से, तो कम हो जाएगा। फिर देन सीजर रिफ्लेक्स, सीजर शेडो, ये हमें देखने को मिलेगा। हेलो हेलो, हाँ शादमा। सीजर शेडो हमें मिलेगा रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में विद डायलेटेड प्यूपिल। जब हम प्यूपिल को डायलेट कर साइक्लोप्लेजिक के इंड्यूस से या इंस्टिल से, तो हमें सीजर शेडो मिलता है। हमें पेरिफेरी एरिया में मूवमेंट मिलेगा और सेंट्रल में अलग। तो इससे क्या होता है, सीजर शेडो फॉर्म हो जाता है। तो हम इसको ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे,
प्यूपिल को हम रिफ्लेक्स देखेंगे, अनडायलेटेड प्यूपिल में रिफ्लेक्स देखेंगे, इससे हम ओवरकम कर सकते हैं। देन कॉन्फ्लिक्टिंग शेडो, शेडो ये इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में देखने को मिल सकता है, एंड ट्रायंगुलर शेडो भी इर्रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में देखने को मिलता है। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि हर मेरिडियन में अलग अलग मूवमेंट देखने को मिलता है। रेगुलर में सिर्फ हमें 2 मेरिडियन पे देखना होता है, लेकिन रेगुलर में क्योंकि इरेगुलर शेप ऑफ कॉर्निया है, केराटोकोनस है, कॉर्नियल स्कार है, उसकी वजह से क्या होता है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलते हैं, उससे कॉन्फ्लिक्टिंग शैडो, ट्रायंगुलर शैडो फॉर्म। I have done